Good morning, students. Today we are going to learn the second topic in 8th class science. So students, this topic name is microorganism friend or foe. So you have learned in class 6 also. So what is this topic about? Microorganism friend or foe? What is mean by microorganism? What is mean by friend or what is mean by foe? Okay, now students, first before going to know the meaning of this topic, what is microorganism? What is microorganism? How many of you know microorganism? You know that famously recently we are facing a big problem. What is that? What is that? Corona disease. So this corona is because of COVID-19 virus. So we can call it as COVID-19 virus as microorganism. So what is microorganism means? The smallest living beings, okay, which cannot seen by our naked eyes. Okay, this is definition. What is microorganism means? The smallest living beings means the smallest living beings means कोई भी जीवी. The smallest living beings which cannot seen by our naked eyes. Naked eyes means direct. जैसे हम आंखों से एनिमल्स को देख सकते हैं, टाइगर को देख सकते हैं, हमने बैल को देख सकते हैं, हमने डॉग्स को देख सकते हैं, कैट को देख सकते हैं, मगर क्या हमने डायरेक्ट अपने आंखों से बैक्टीरिया वायरस को देख सकते हैं? अभी जो कोरोना को हम देख सकते हैं, कोरोना को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते. So we can define microorganism as the smallest living beings which cannot seen by our naked eyes are called as microorganism. Okay, or called as microorganism. Very simple. What is meant by microorganism means the smallest living beings which cannot seen by our naked eyes are called as microorganism. Okay, we cannot seen by our naked eyes, but how we can see this microorganism? We are defining that the smallest living beings which cannot seen by our naked eyes are called as microorganism. Okay, it is true that we cannot see corona directly with our eyes, but how we can see? By using what? So we can see this microorganism by using microscope. Very simple. By using microscope we can see microorganism. We can see. Okay, to see microorganism. So ये है microorganism. Example of microorganisms are bacteria, algae,
फंगी, प्रोटोजोआ and virus. So this is the definition of microorganism. The smallest living beings which cannot seen by our naked eyes are called as microorganisms. We can see those microorganisms by using microscope only. The example of microorganisms are bacteria, algae, fungi, protozoa, viruses. Understand? Suppose if you take a bread piece, okay, if you take a bread piece and wet it with water, इसको भिगा दीजिए पानी से। भिगाने के बाद 1-2 दिन ऐसे ही रख दीजिए। आप इसके ऊपर वाइट कलर में पूरा फाइबर्स आ जाएगा। ओके, वाइट कलर में पूरा फंगस आ जाएगा। सो पहले ये नहीं दिखता है, बाद में कहाँ से आया? मीन्स these are present in nature. These are present in nature. So which cannot seen by our naked eyes, we can see only by using microscope. The examples of microorganisms are bacteria, algae, fungi, protozoa, viruses. Now what is mean by friend or foe? Microorganism friend or foe? Okay, so ये क्वेश्चन है हमको, टॉपिक का नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड आर फो। हमने डिफाइन कर लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और उसको किससे देख सकते, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अब हमने देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड आर फो। ओके, सो सी हियर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। सो फ्रेंड मतलब आपको पता है जो हमको भलाई करता है। फ्रेंड मीन्स विच डू गुड, विच डू गुड। फो मीन्स क्वाइट ऑपोजिट टू फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स दोस्त है, फो मीन्स एनिमी है। ओके, दुश्मन जैसे। मतलब ये बोल रहे हैं हमारे टॉपिक, इट इज टेलिंग दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फ्रेंड और फो। व्हाट should be your answer? Is microorganisms helps us or harms us? So according to today's situation we can say that microorganism is foe, means enemy. Foe means enemy. Enemy means which do harm, मतलब खतरा कर सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, सो नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फ्रेंड और फो। सो वी कंसिडर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एज वेल एज फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी है, फो भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। कैसे फ्रेंड है, कैसे फो है, अभी देखेंगे। सो आई एम टेलिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फ्रेंड एंड फो। यू ऑल्सो नो दिस। सो लेट वी से why we consider as friend. Why we consider as friend? Example, in making curd, आप जो दही खाते हैं ना, दही दूध में से बनती है ना। ओके, सो कैसे बनती है? हमने दूध गर्म करके फिर दूध में क्या डालते हैं? थोड़ा सा दही डालते हैं। तो दही में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। कौन से बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया का नाम है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से दूध दही में कन्वर्ट होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से दूध दही में कन्वर्ट होता है। और सेकंड एग्जांपल देखेंगे हमने फेर्मेंटेशन। क्या है? फेर्मेंटेशन। जैसे फेर्मेंटेशन में क्या होता है?
वेरी सिंपल है। फेर्मेंटेशन में ईस्ट जो होता है, ईस्ट सेल, ओके, ईस्ट सेल जो होता है, आप ब्रेड फैक्ट्री में देखिए, ब्रेड फैक्ट्री में नहीं तो बेकरी में जो भी फूड बनता है यह ईस्ट की वजह से, बियर प्रिपरेशन फैक्ट्री में। सो फेर्मेंटेशन मीन्स अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, इडली बनाते समय हमने भिगा देता है तब भी ईस्ट फेर्मेंटेशन रिएक्शन होता है। सो फेर्मेंटेशन रिएक्शन के वजह से हमको बेकरी प्रोडक्ट्स आता है। एक तो दही बनाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, दूसरा ईस्ट है, और तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा है 6th-7th में। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या है? प्लांट्स का रूट में नोड्यूल्स होता है, ये रूट के ऊपर ऐसा एक बैग जैसे होता है, ओके, रूट के ऊपर ये बैग जैसे होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है, ये नेचर में जो नाइट्रोजन होता है उसको खींच के ये प्लांट को देता है। नेचर में नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट नहीं ले पाता है, तो ये नेचर में जो नाइट्रोजन है उसको ये जो प्लांट का रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स में, ये बैग्स में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नेचर में जो नाइट्रोजन है उसको खींच के प्लांट को प्रोवाइड करता है। इसी को हमने बोलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो वो प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, तो वो बैक्टीरिया का हेल्प ले लेगा। बैक्टीरिया कहाँ रहेगा? ये रूट्स के ऊपर रहेगा। आप ग्राउंड नट के प्लांट के रूट्स में देखेंगे तो आपको नोड्यूल्स दिखाएगा। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को हमने नोड्यूल्स बोलता है। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड इसलिए बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल ये है, एक दूध को दही बना सकते हैं, दूसरा फेर्मेंटेशन है बेकरी प्रोडक्ट के लिए, तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको खींच के प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। सो इस रीज़न से हमने, और सॉइल फर्टिलाइजेशन के लिए भी बैक्टीरियाज को हमने यूज़ करते हैं। सो वैक्सीन बनाने में भी बहुत सारे यूजेस है हमको बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो हमने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ये थोड़ा बहुत यूजेस है। सो दिस इज टुडेज टॉपिक, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेशंस। By using microscope we can see microorganisms. An example of microorganism: bacteria, virus, protozoa, fungi, algae, and how we are consider them as friend because they help us to making milk into curd, and for doing fermentation reaction and all bakery products we use yeast cells, and for nitrogen fixation in plants. So by these reasons we can call them as friend. So later we learn why we call them as foe.